براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ چند حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایک بائی الیکشن میں، جو پورے شہر میں ایک الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، پورا الیکشن کمیشن اس پر مامور ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس میں بھی ہم شفافیت نہ دے سکیں، ہم ووٹ کا احترام نہ کر سکیں اور ایک الیکشن متنازع بن جائے، تو پھر ہم اس سارے پروسیس پر کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بنیادی بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، اس پر کیسے یہ معاملہ چل سکتا ہے۔ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جس دن الیکشن ہوا، ہم نے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب کے پاس گئے، ہم نے کہا جناب یہ رات کے 2 بج گئے ہیں، ابھی تک آپ رزلٹ اکٹھا نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن کا حکم ہے کہ واٹس ایپ جو ہے وہ رزلٹ امیڈیٹلی کر دیا جائے، اور کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں تھا جہاں پر 8 بجے کے بعد بھی گنتی ہو رہی تھی، یعنی رزلٹ بن چکا تھا۔ ایسے پولنگ اسٹیشن بھی تھے جہاں 15 منٹ میں رزلٹ بن چکا تھا، 276 پولنگ اسٹیشن تھے۔ ہم نے کہا میں یہ بتا دیں، ٹائم سٹیمپ بتا دیں کہ کب آپ کو ریسیو ہوئے واٹس ایپ میسیجز الیکشن کے، پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ ہم نے لکھ کے پٹیشن دے دی۔ ہماری نالج میں یہ ہے کہ آج تک بھی 34 پولنگ اسٹیشنز کے واٹس ایپ رزلٹ ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں آئے۔ ہمیں کوئی ڈیٹا ریٹرننگ افسر نے نہیں دیا، لیکن یہ ہماری نالج میں آیا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ کہا کہ جب یہ فارم 45 اصلی ووٹوں سمیت آپ کے آفس میں پہنچے ہیں وہ ٹائم بتا دیں، کیونکہ جب ہم 11 بجے پہنچے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں، تو ابھی ایک بڑی تعداد کی 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس اور فارم 45 ان کے پاس نہیں آئے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ الیکشن کو 6 گھنٹے گزر چکے تھے، کوئی پولنگ اسٹیشن بھی آدھے گھنٹے کی زیادہ سے مسافت پہ نہیں تھا ریٹرننگ افسر کے دفتر سے، اور ابھی تک رزلٹ ایک بڑی تعداد کے نہیں پہنچے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ کب آپ کو یہ رزلٹ موصول ہوئے۔ یہ 2 معاملات پر ہم نے ان کو لکھ کر دیا کہ جناب یہ بتا دیں۔ پھر ہم نے کچھ پولنگ اسٹیشنز کا بتایا کہ یہاں پر فورینزک آڈٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس طرح وہاں پر جو رویہ تھا پریزائڈنگ آفیسرز کا الیکشن جو پولنگ ایجنٹس کے ساتھ، وہ اتنا نامناسب تھا کہ ہمیں وہاں پر دھاندلی کا خدشہ ہے۔ یہ پٹیشن بھی دے دی۔ اس پر کوئی ڈیٹا نہ آج تک دیا گیا ہے، واٹس ایپ کا ڈیٹا یا فارم 45۔ فارم 45 عمومی طور پہ ریٹرننگ آفیسر جو اس کے پاس پہنچتے ہیں وہ ریکارڈ امیدواروں کو دے دیتا ہے۔ یہاں پر آج تک کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ ہماری درخواستیں ہم نے اسی رات ان کو دے دی تھی۔ اب آج صبح ہمیں ٹائم دیا گیا کہ 11 بجے کنسالیڈیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کہا گیا کہ آپ 11 بجے آئیں، آپ کی پٹیشن بھی سنیں گے اور کنسالیڈیشن کا پروسیس بھی شروع کریں گے۔ 9 بجے خوش قسمتی سے وہاں موجود تھے۔ 9 بجے ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک صاحب نے، اور یہاں پر ایک ڈی آر او ہیں ندیم حیدر صاحب، یہ بھی اس میں ہیں، اور ایک مانیٹرنگ آفیسر ہیں عبد الرحمان رائی صاحب، یہ حضرات ہیں۔ انہوں نے 9 بجے ہی فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا تھا اور ہماری پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا جناب ہم نے ڈیٹا مانگا ہے جس کی بنیاد پر ہم ری کاؤنٹ کی درخواست دیں گے، آپ ہمیں ڈیٹا دینا درکنار آپ نے ہماری پٹیشن سے ریجیکٹ کر دی ہے۔ ہم نے پھر نئی پٹیشن دی۔ ہم نے کہا کہ قانون ملک کا یہ کہتا ہے سیکشن 95(5) کہ جب ڈفرنس جو ہے وہ 5% آف پولڈ ووٹ سے کم ہو جیتنے اور ہارنے والے میں، تو ریٹرننگ آفیسر شیل آرڈر ا ری کاؤنٹ، اور اس کی ایک لمبے پریسیڈنٹس موجود ہیں۔
सैकड़ों की तादाद में इस बुनियाद पर रीकाउंट्स हुए हैं। तो ये हमारा हक बनता है कि जो आपके पास डिफरेंस है इस पर रीकाउंट किया जाए। उस पिटीशन को भी आरओ साहब ने बगैर सुने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। वो पहले से लिख कर बैठे हुए थे ये सब मामला रिजेक्टेड है। अब सूरत हाल ये है कि जो नॉलेज हमारे पास है 34 फॉर्म 45 का व्हाट्सएप इलेक्शन कमीशन में नहीं पहुंचा, आरओ के पास नहीं पहुंचा हुआ। 30 फॉर्म 45 जो हैं वो हमें नहीं मिले, हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नहीं दिए हमारे लोगों को। हमने इधर उधर से डेटा इकट्ठा करके अपनी कोशिश की है। बहुत से फॉर्म 45 ऐसे हैं जिसमें टोटल ही नहीं किया हुआ। ये एक तरीका होता है कि टोटल नहीं लिखते और बाद में जो मर्जी है टोटल वहाँ पर लिख दिया जाता है। तो बहुत से फॉर्म 45 पर टोटल ही नहीं है। 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 हैं जिन पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। कानून ये कहता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके सिग्नेचर लेने हैं फॉर्म 45 पर। 100 से ज़ायद फॉर्म 45 पर सिग्नेचर नहीं है। ये भी एक तरीका होता है जो माजी में इस्तेमाल किया गया है कि सिग्नेचर ना लिए जाए और फॉर्म 45 जो रिटर्निंग अफसर को आए उस पर वोटें और लिखी हों और जो लोगों के पास हों वो और हों और फिर वो कुछ कहने के काबिल ना हो। कुछ फॉर्म 45 में मिस्टेक्स हैं, एडिंग की मिस्टेक्स हैं, किस उम्मीदवार के वोट कहाँ लिखे गए हैं वो मिस्टेक्स हैं। ये इसका कोई जानने पूछने वाला नहीं है कि ये किसने मिस्टेक्स की हैं, क्यों की हैं, इनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। अब हमने जो हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद थे, जो हमने दूसरी जमातों से उनके फॉर्म 45 से डेटा लेकर हमने वोट इकट्ठे किए हैं, हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी फॉर्म 45 की कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुहैया नहीं की, ना ही व्हाट्सएप का डेटा दिया है। बहरहाल जो हमने इकट्ठे किए हैं और अभी कुछ स्टेशन के नहीं हैं, तो हमारी जो तादाद है इस डेटा की बुनियाद पर, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास डेटा आया है वो ऑलरेडी उन नंबर ऑफ वोट से ज़्यादा है जो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने गैर सरकारी नतीजे में लिखे हैं। उससे हमारे वोट्स, बावजूद इसके कि बहुत से अभी पोलिंग स्टेशन रहते हैं, फिर भी हमारे वोट उस नंबर से बढ़ चुके हैं। साथ साथ टीएलपी ने भी अपना डेटा इकट्ठा किया है। उनके डेटा के मुताबिक ये इसको वेरीफाई वो कर देंगे जो हमें बताया गया है कि टीएलपी ने 230 पोलिंग स्टेशन जब उन्होंने उनके नंबर इकट्ठे किए वोट्स के, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर के फॉर्म में उनके वोट्स लिखे हुए हैं वो उससे बढ़ गए थे। यानी अभी 146 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं, टीएलपी ने नंबर्स नहीं डाले, लेकिन उनके वोट रिटर्निंग ऑफिसर के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो दिया गया है उससे बढ़ चुके हैं। अभी 146 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं टीएलपी के हिसाब से। अब 700 वोट रिजेक्ट भी हुए हैं। लेडीज़ वोट्स के अंदर बेपनाह इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये सब जब वोट रिजेक्ट विक्ट्री मार्जिन से ज़्यादा हो, जब डिफरेंस जो है वो 5% ऑफ पोल्ड वोट से कम हो, तो ये एक ऑटोमेटिक राइट समझा जाता है कि रीकाउंट होगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, डीआरओ, मॉनिटरिंग ऑफिसर, इन सब का रवैया इतना ये यानी फरीक बन चुके हैं सिलेक्शन के अंदर। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई डेटा देने को तैयार नहीं है। तो आज ये फरीक बन चुके हैं। ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ा हो चुका है, करोड़ों रुपए इन हजरात के सामने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हल्के में लगाए। मॉनिटरिंग ऑफिसर मौजूद है, दरख्वास्तें भी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए, 2 पोलिंग स्टेशन थे 260, 261, उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 भी देने से इनकार कर दिया।
साइन कराना तो दूर की बात है, और वहाँ के रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इतना डिफरेंस किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर तो वो फॉर्म भर के 45 और चला गया, अभी 5 बजे से पहले 4 बजे वो वहाँ छोड़कर चला गया। तो इतनी इरेगुलरिटीज़ है सारे मामले में कि रीकाउंट के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बज़िद है कि मैं रीकाउंट नहीं करूँगा, उसने लिख कर दे दिया है और कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स की इब्तिदा कर दी। हम इलेक्शन कमीशन में गए, यहाँ भी गए, इस्लामाबाद में भी गए। हमारी अब खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स को रोका हुआ है। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है, ये इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि उसका जो नुमाइंदा यहाँ पर है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो DRO है, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, वो तो फरीक हैं, वो तो कोई फैसला करने की ना पोजीशन में है, ना वो यहाँ पर कोई इंसाफ दे सकते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर डेटा देने से इनकार कर दे, जो कि हक बनता है, हर रिटर्निंग ऑफिसर देता है, माजी में देता रहा है, तो आप उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। हमने लिख कर कहा व्हाट्सएप का टाइम स्टैम्प बता दें, और जब ये यहाँ पर फॉर्म 45 पहुँचे ये उसकी टाइमिंग बता दें, ये नहीं दी गई। ना ही जो फॉर्म 45 वहाँ पर पहुँचे हैं वो दिए गए। तो यहाँ पर एक मुकम्मल धांधली का माहौल है, और ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतराज़ा बन चुका है, क्योंकि डस्का में कम से कम 20 रिटर्निंग ऑफिसर तो देर से पहुँचे थे, वहाँ टाइम तो पता था कि कब पहुँचे हैं। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देने से ही गुरेज कर रहा है। उनका तमाम रवैया पहले वक्त से सिर्फ वक्त टालने का है, और कोशिश ये है कि कंसोलिडेशन करके अपनी जान छुड़ा लें, ताकि फिर जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो अदालतों में फिरते रहें और ट्रिब्यूनल में फिरते रहें। ये इस वक्त की हकीकत है। हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश ये है कि हमने आपको पिटीशन दे दी है, हक़ाइक़ आपके सामने है, कानून हमारे साथ है, आप मुकम्मल रीकाउंट का हुक्म फरमाएं, ताकि पाकिस्तान की इलेक्शंस की स्याह तारीख में एक और बाब का इजाफा ना हो। पाकिस्तान की इलेक्शंस की स्याह तारीख में एक और बाब का इजाफा ना हो, वरना ये इलेक्शन जो है इसके मामलात तो आज कोई शख्स भी इस इलेक्शन के रिज़ल्ट कबूल करने को तैयार नहीं है पूरे पाकिस्तान में। ये हकीकत है इस इलेक्शन की। इसका हल फौरी रीकाउंट में है, और उसके बाद जिन पोलिंग स्टेशन की हमने निशानदेही की है उसके फोरेंसिक ऑडिट में है, क्योंकि उन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वोटों में धांधली करके काउंटर फॉइल कुछ और कह रहा होगा, यहाँ पर वोट कुछ और पड़ा होगा। ये मामलात भी